علاقے کے شجاعت گنج کے جناب یوسف بلرام پوری صاحب کا اسی بہر میں کہ شعر ہے کہ چادر رحمت تنی ہے آ رہے مصطفیٰ، چادر رحمت تنی ہے آ رہے ہیں مصطفیٰ، اور رات یہ دلہن بنی ہے آ رہے ہیں مصطفیٰ، محو حیرت ہے زمانہ آج دنیا کفر کی، منہ چھپائے رو رہی ہے آ رہے ہیں مصطفیٰ، اور گرم تھا بستر اور زنجیر بھی ہلتی رہی، میرا شریف کا شعر ہے، گرم تھا بستر اور زنجیر بھی ہلتی رہی، ایک پل میں جا کے دیکھو آ رہے ہیں مصطفیٰ۔ بس انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جن کا ہم لوگ کافی دیر سے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جو اس پروگرام کے مقرر خصوصی ہے، مقرر ذیشان، مقرر شیریں بیان، میں گزارش کروں گا آئیے استقبال کریں حضرت علامہ و مولانا محمد مرتضی حسین شریفی صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند آواز سے استقبال کریں، اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے، تاکہ بروز محشر یہ جو آپ کے بازو ہیں، یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، یہ گواہی دیں کہ نعرہ تکبیر و رسالت پر یہ ہاتھ جو ہے بلند کیے گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ ممبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء ذوی الاحترام، قرائے ذوی الفخام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ذی وقار، یہ ہماری اور آپ سب کی خوش نصیبی مشترکہ فیروز بختی ہے کہ آج کی شب
ہم اور آپ جماعت اہل سنت کے بڑے موقر حافظ قرآن قاری و خوش لحاظ کرم فرمائے من حضرت حافظ و قاری شفیق اللہ چشتی صاحب کی دعوت محبت پر آج اس مکان میں حاضر ہیں اور خدا اور محبوبان خدا کی مقدس بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل مبارکہ میں ہماری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنے اور اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ شاید سے آپ حضرات جلدی سے فارغ ہو جائیے، میں نہیں کہوں گا کہ نہ پیجئے، پی لیجئے، ٹھنڈی بہت ہے، چائے پی لیجئے، لیکن چائے جلدی بانٹ کے پی کے فارغ ہو لیجئے۔ میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ بڑے بڑے وکلاء میٹنگ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور بڑے بڑے صاحبان منصب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور ان ساری میٹنگوں میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا، کبھی جانے کا اتفاق ہو تو آپ غور کیجئے گا کہ جتنے لوگ میٹنگ میں شریک رہتے ہیں نا، بڑے مہذب طریقے سے سب کے سب بیٹھے رہتے ہیں۔ فون اگر کسی کا آ رہا ہے تو سائلنٹ موڈ پہ لگا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، گفتگو نہیں کی جاتی فون پہ، اور میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد بات کی جاتی ہے۔ کوئی بار بار اٹھتا بیٹھتا آپ کو میٹنگ میں نہیں دکھائی دے گا، جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، پھر وہ اسی وقت اٹھتا ہے جب میٹنگ مکمل ہو جائے، اور جب تک میٹنگ چلتی رہتی ہے پوری میٹنگ میں ایک دوسرے سے کوئی سرگوشی نہیں کرتا، بڑے مہذب انداز میں بیٹھتے۔ میری شرکت ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ علماء ذوی الاحترام تشریف فرما انہوں نے بھی دیکھی ہوگی، اور آپ لوگوں کو بھی کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی میٹنگ میں لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اتنے مہذب طریقے سے بیٹھتے ہیں، فون پہ بات بھی نہیں ہوتی ہے، پان خوری بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی گٹکا مسالہ بھی نہیں کھاتا ہے، بڑے مہذب طریقے سے سب بیٹھتے ہیں۔ یہ دنیاوی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے، یہ خدا اور محبوبان خدا کے ذکر کی مقدس محفل۔ دنیاوی میٹنگ میں وکلاء آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، پروفیسرز آتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان منصب آتے ہیں، لیکن جب خدا اور محبوبان خدا کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں تو یہ ڈاکٹرز، وکلاء، لیکچرارز، پروفیسرز، صاحبان منصب نہیں بلکہ آسمان سے نوری ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ میں صاحب خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبارک ہو، آج آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں نوری ملائکہ کا نزول ہے، خیر و برکت کی بارش برس رہی ہے۔ جماعت کے موقر علماء، یہ دیکھیے ادیب لبیب، خطیب شہیر، شاعر خوش فکر، فخر القراء حضرت علامہ قاری فیصل علیمی صاحب قبلہ دامہ فضلہ، جو بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، بڑے اچھے قلمکار شاعر بھی ہیں، اور بڑے اچھے قاری قرآن بھی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اس مختصر سی محفل میں ان کے یہ سارے ہنر دیکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کلام پیش کر رہے تھے تو اس میں خطاب کی جھلکی بھی آپ نے ملاحظہ کی، نغمہ سنجی بھی ملاحظہ کیا، زور قلم بھی آپ نے دیکھ لیا، تلاوت کلام اللہ سے جب مجلس کا آغاز ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کتنے شاندار قاری قرآن ہے۔ بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھو میرے لال۔ حافظ صاحب تشریف رکھیں، ماشاءاللہ
ये हमारे जमात के बड़े मुमताज कारी कुरान हजरत हाफिज व कारी निसार अहमद साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। हजरत कारी हाशिम साहब, बड़ा अच्छा कलाम आपने पेश किया, आपने समाअत किया। हजरत हाफिज व कारी लारैब साहब, आपके अछूते अंदाज में कोई रैब है ही नहीं, लारैब है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत हाफिज तालिब साहब, ये सभी हजरात तशरीफ फरमा हैं। और आज के इस महफिल के रूह रवां हजरत कारी शफीकुल्लाह साहब, ये भी तशरीफ फरमा है। आप हजरात की मौजूदगी है और आज तो माशाअल्लाह चौथी का प्रोग्राम है, सुभान अल्लाह। और ये दोनों दूल्हे तशरीफ फरमा है सामने, है ना, माशाअल्लाह। ये सरताज साहब, ये हैं सरताज साहब, एजाज साहब, माशाअल्लाह। मैं आज की इस चौथी में, ये ससुराल है इनकी, ससुराल में मैं ससुरालियों की तरफ से आपको खैर मकदम कहता हूँ, मोस्ट वेलकम कहता हूँ, माशाअल्लाह। तशरीफ फरमा है सभी लोग। थोड़ी देर अगर आपकी समातें इजाजत दें तो मुझे बर्दाश्त फरमाएं। जहां इन मौकर बुजुर्गों को आपने समात किया है, वहीं थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त फरमा लें आप। मैं चाहता हूं कि अभी सभी हजरात से आपने नात व मनाकिब के बड़े अच्छे अच्छे अशार समात किए, सुभान अल्लाह। चचा हमारे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद रजा खान, माशाअल्लाह। बहुत खुशी के साथ इन्होंने नबी की नात सुनी है और आप सबने माशाअल्लाह सुनी है। तो अब इन शख्सियात की तरह मुतरन्निम आवाज तो नहीं है मेरी कि मैं अपने आवाज से आपको मशहूर कर सकूं, मगर ताहते लफ्ज में मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुजद्दिदे नियते माज़िया व हाज़िरा मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत मज़हरे गौसियत सराता कश्फ़ो करामत हम सब के हज़रत कातिई कुफ्र व दलालत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत रफ़ीउल दरजत अज़ीमुल मर्तबत सैयदना सरकार शाह इमाम अहमद रजा खान के नोटे कलम से सादिर शुदा नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद अशार तज़मीन के साथ ताहते लफ्ज़ में मुझसे मुलाहिज़ा फरमा ले, ताकि मेरी ज़बान की सफाई हो, फिर गुफ्तगू का आगाज हो। किस ज़बान से हो बयां, किस ज़बान से हो बयां अज़मत रसूलुल्लाह की, वो ज़बान हमारे पास नहीं है। किस ज़बान से हो बयां अज़मत रसूलुल्लाह की, बाइसे तख़लीक़े कुल खिलक़त रसूलुल्लाह की। किस ज़बान से हो बयां अज़मत रसूलुल्लाह की, बाइसे तख़लीक़े कुल खिलक़त रसूलुल्लाह की। सब्ज़े गुंबद फर्श पर तुरबत रसूलुल्लाह की, सबसे गुंबद फर्श पर तुरबत रसूलुल्लाह की। लेकिन अर्शे हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह, अर्शे हक है मसनदे, अर्शे हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी दुनिया में कौन नहीं हुआ। इंडियन है वो भी नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी है।
पाकिस्तानी है वो भी नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी, इराकी भी नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी, शामी भी नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी, मिस्री भी नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी, यमनी भी नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी, नबी के करम का मुतमन्नी अरबो अजम है। पूरी कायनात है, जमीनो जमा है, आसमान है, तहत सरा है, सिदरा है, अर्श की बुलंदी है, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के करम का मुतमन्नी है, नबी के लुत्फ़े खास का मुतमन्नी है। शेर मुलाहिजा फरमाए, उनके लुत्फ़े खास का हर कोई मुतमन्नी हुआ, उनके लुत्फ़े खास का हर कोई मुतमन्नी हुआ। हिंदी वो, रोमी वो, शामी, मिस्री वो, यमनी हुआ। जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा वो जो सुन्नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बड़े चुभते हुए अशार मुलाहिजा फरमाए। क्या मिला, क्या मिला नजदी कमीने को फकत रोना मिला। क्या मिला नजदी कमीने को फकत रोना मिला। इससे ज्यादा और क्या तुम्हें हसद होना मिला। जो मिला अहले वफा को बेवफा को ना मिला, जो मिला अहले वफा को बेवफा को ना मिला। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मोजज़ा है सरवरे कौनो मका की ज़ाते पाक। मोजज़ा है सरवरे कौनो मका की ज़ाते पाक। जो नहीं माना यकीनन कर लिया खुद को हिलाक। मोजज़ा है सरवरे कौनो मका की ज़ाते पाक। जो नहीं माना यकीनन कर लिया खुद को हिलाक। कह दिया मेरे मुजद्दिद ने बरेली से बेबाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख लो कुदरत रसूलुल्लाह। अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बिल यकीन मरदूद हो, मलऊन हो, मकहूर हो। बिल यकीन मरदूद हो, मलऊन हो, मकहूर हो। तालिबाने नदवा नानौता सहारनपुर हो। बिल यकीन मरदूद हो अलीमी साहब, बिल यकीन मरदूद हो, मलऊन हो, मकहूर हो। तालिबाने नदवा नानौता सहारनपुर हो। दामने इबलीस में आकर नयो मगरूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मक्ता मुलाहिजा फरमाए, वो मुजस्सम नूर है, वो मुजस्सम नूर है। पूरा घराना उनका नूर होता है हासिल नबी की नात से अजहर सुरूर। वो मुजस्सम नूर है, पूरा घराना उनका नूर। जी नहीं, वो अजहर कानपुरी नहीं हजरत, ये अजहर मटहनवी है।
सुभान अल्लाह। वो मुजस्सम वाज़ेह कर देना जरूरी है, वो मुजस्सम नूर है। नहीं ये मटेहनवी है, हाँ सिद्धार्थ नगर। वो मुजस्सम नूर है, पूरा घराना उनका नूर होता है हासिल नबी की नात से हमको सुरूर। ये बिसात अपनी कहाँ कि लिख सकूं नाते हुजूर, ये बिसात अपनी कहाँ कि लिख सकूं नाते हुजूर। ये रज़ा खुद साहिबे कुरान है मताहे हुजूर, ये रज़ा खुद साहिबे कुरान है मताहे हुजूर। तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। मादने जूदो निअम मंबए फजलो करम, ताजदारे हिल्लो हरम, जाने जानाने अरबो अजम, साहिबे लौलाक सयाहे अर्शो फर्श, मकीने लामका वजह तखलीके कायनात, अरबाहुना फिदा हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब बाबरकत रहमत बाफैज बाकरम बारगाह में एक बार जी लगाकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बा आवाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बितमाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने ज़ीवकार, ये 15वीं सदी हिजरी का जमाना चल रहा है और ये दौर रियाकारी का दौर है, ये दौर दिखावे का दौर है, ये दौर जिस दौर में हम और आप गुजर रहे हैं ये दौर सुमा का दौर है, सोख्तेबाजी का दौर है, ये दौर ठड्डेबाजी का दौर है। आज आप जरा सा गौर फरमाएं, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें रियाकारी नहीं पाई जा रही है, कौन सा ऐसा मरहला है जिसमें रियाकारी नहीं पाई जा रही है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, आज इबादत का मामला देखिए, इबादत में रियाकारी घुसी हुई है, और रियाजत का मामला देखिए, और रियाजत रियाकारी से भरपूर नजर आ रही है। आज आप सियासत के मैदान में कदम रखिए, सियासत में रियाकारियां पाई जा रही है। कोई मोड़ ऐसा नहीं, जिंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं कि जिस मरहले में इंसान के अंदर रियाकारी ना पाई जा रही हो, दिखावा ना पाया जा रहा हो, सुमा न पाया जा रहा हो, सोख्तेबाजी नजर ना आ रही हो। ये सर्दी का जमाना है और इस सर्दी के जमाने में जब कपकपाती हुई सर्दी पड़ रही है, ओले गिर रहे हो, ओस गिर रहा हो, हाथ से लेकर पैर तक, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन ठुठर रहा हो, ऐसे सर्दी के आलम में चौराहों पर नेता लोग लकड़ियों का एहतमाम कर रहे हैं, लकड़ियां जलवाई जा रही है, बड़ी बड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और चौराहों पर गरीबों के लिए लकड़ी जलाई जा रही है। मगर लकड़ी जलाते वक्त नेताजी लकड़ी के करीब खड़े होकर जलाते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है और उसे सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है ताकि कौम देख ले कि मैं सखी हूँ, मैं दाता हूँ, लोग जान ले कि फला चौराहे पर लकड़ी मेरी तरफ से जलाई जा रही है, ये एहतमाम मैंने किया है। आज सर्दी के जमाने में गरीबों को मालदार लोग कंबल तकसीम कर रहे हैं, रजाइयां तकसीम की जा रही है, स्वेटर और जैकेटें तकसीम की जा रही है, मगर इधर गरीब खड़ा है, इधर मालदार खड़ा है, बीच में जैकेट का अंबार लगा हुआ है या कंबल का अंबार लगा हुआ है। वो दौलतमंद अपना एक खादिम साथ में लेकर के चल रहा है, खादिम कंबल उठाकर दौलतमंद के हाथ में दे रहा है और दौलतमंद वो कंबल गरीब के हाथ में दे रहा है। अभी इस हाथ से उस हाथ में गया नहीं है, इधर से ये हाथ लगा है, उधर से लेने वाला हाथ लगा है, इधर से देने वाला हाथ लगा है, उधर से लेने वाला हाथ लगा है और सामने से फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है और फोटोग्राफी करके सोशल मीडिया पर उसे चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये
कंबल तकसीम किया जा रहा है, या गरीब की इज्जत सोशल मीडिया पे नीलाम की जा रही है, ये कंबल तकसीम किया जा रहा है, या सोख्तेबाजी की जा रही है, ये कंबल तकसीम किया जा रहा है, ये स्वेटर तकसीम किया जा रहा है, या रियाकारी की जा रही है, दिखावा किया जा रहा है, गरीबों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। आज कोई दौलतमंद अगर हॉस्पिटल पहुंच रहा है किसी गरीब की इयादत के लिए, तो उसके हाथ में एक फल से भरी हुई थैली होती है, वो पॉलीथीन लेकर के हॉस्पिटल जा रहा है और गरीब के हाथ में फल थमा रहा है, मगर फल बाद में दे रहा है, फोटोग्राफी पहले कर रहा है, वीडियोग्राफी पहले कर रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये रियाकारी का दौर है, सोख्तेबाजी का दौर है। कोई दौलतमंद अगर किसी गरीब की लड़की की शादी करवा रहा है तो वीडियोग्राफी कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए नुमाइश कर रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, कौन सा शोबा ऐसा है कि जिस शोबे में जमाना रियाकारी न पाई जा रही हो, दिखावा न पाया जा रहा हो, सोख्तेबाजी न पाई जा रही हो, सुमा का पहलू नजर न आ रहा हो। हर शोबे के अंदर आज रियाकारी पाई जा रही है, दिखावा पाया जा रहा है, सोख्तेबाजी पाई जा रही है। इसी का रद्दे बलीग कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया है, और हमारा तुम्हारा सारी कायनात का पालनहार रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तर्जमा सुने, ईमान ताज़ा हो जाए। रब फरमा रहा है, कुले महबूब आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज़ें, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है। हमारी नमाज़ें उस रब के लिए है, हमारी कुर्बानी उस रब के लिए है, हमारी जिंदगी उस रब के लिए है, हमारी मौत उस रब के लिए है। वो रब्बे कदीर, वो खुदा के ला शरीक ला, जिसकी रुबूबियत में कोई शरीक नहीं, जिसकी माबूदियत में कोई शरीक नहीं, जिसके कादिर होने में कोई शरीक नहीं, जिसके खालिक होने में कोई शरीक नहीं, जिसके राज़िक होने में कोई शरीक नहीं, जिसके मालिक होने में कोई शरीक नहीं। अरे महबूब आप फरमा दीजिए, वह बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहले मुसलमानों में। जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा हुसैन शरीफी साहब क़िबला। आज ये शादी और चौथी की महफिल है। आज जरा आप शादियों में देख लीजिए किस कदर रियाकारी पाई जा रही है। एक इंसान अपने बेटे की बारात सजाता है, बारात लेकर के जाता है, बारातियों की तादाद 150 है। बगल वाला देख रहा है, अच्छा तुमने अपने लड़के की शादी में तुम 150 लोगों को बारात लेकर गए, अच्छा आने दो मेरे लड़के की शादी, ना 200 लोगों को बारात लेकर के गया तब कहना। तीसरा पड़ोसी सोच रहा है, अच्छा तुम 200 लेके जा रहे हो, होने दो मेरे बेटे की शादी, ना मैं 300 बाराती लेकर गया तब कहना। पूरे मोहल्ले में सबको दिखाऊंगा, डीजे बाजा गाजा का एहतमाम करूंगा, लोग देखेंगे। ये रियाकारियां बारातों में भी पाई जा रही हैं। ये रियाकारियां आप जाकर के वलीमे के गेस्ट हाउस में देखिए ना, किस कदर दिखावा चल रहा है। एक पेट है, 2 रोटी खाना है, थोड़ा सा चावल खाना है, मगर ना इतने से काम नहीं चलेगा। दही बड़े वाले को बुलाओ, किधर गया दही बड़ा लगवाया जाए। चाट वाला किधर गया, बुलाओ उसको चाट लगाए। रोस्टेड वाले किधर हैं, बुलाओ रोस्टेड तैयार कर रहे हैं। मछली फ्राई करने वाले को बुलाया जाए, मछली फ्राई की जाए। गाजर का हलवा क्यों नहीं है, उसको उसका भी एहतमाम होना चाहिए।
खीर कहाँ चली गई? खीर भी होना चाहिए। इंसान इस रियाकारी के चक्कर में भले बाप दादा की जायदाद बेचना पड़े मगर रियाकारी जरूर करेंगे, भले औरत का जेवर गिरवी रख करके करना पड़े मगर ये दिखावा जरूर करेंगे, वरना सोचता मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मेरे अजीज, बड़े बूढ़े कहते हैं चादर देख के पैर फैलाओ। हाँ, वरना अगर पैर ढकोगे, पैर फैला लोगे तो सर खुल जाएगा। चादर छोटी है तो सिमट करके लेट जाओ, काम चला लो, फैलाओ नहीं। अब अगर चादर देख करके पैर नहीं फैलाया तो अगर पैर ढकोगे तो सर में हवा लगेगी, सर ढकोगे तो पैर में हवा लगेगी। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अपनी पॉकेट देखिए ना, दिखावा ही करना है आपको। इसीलिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है। जी नहीं, आपकी तख्लीक दिखावे के लिए नहीं हुई है। आपकी तख्लीक इसलिए हुई है कि अल्लाह की इबादत कीजिए, वो भी खुलूसे नियत के साथ, नियत में खुलूस हो। वो इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया है, रियाकारी और दिखावे के लिए नहीं पैदा किया है। आज तो ये सच है कि मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो इनके मैरिज हॉल में जाकर के देखिए, इनकी अमीरी देखनी हो तो चाय के होटलों पर देखिए, इनकी अमीरी देखनी हो तो इनकी शादियों में देखिए, और इनकी गुर्बत का जायजा लेना है ना तो मस्जिद में जुमा में चंदा में देख लीजिए। जब मस्जिद में जुमा का चंदा होता है तो इस कौम से बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, और जब इनके वहां शादियां होती हैं तो इनसे मालदार दुनिया में कोई नहीं। ये बड़े बड़े मालदारों को फेल करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और मालदारों को फेल करने के चक्कर में कई नजीरें हजरत मौजूद हैं। बाप दादा की बपनसी जमीन जायदाद बेचना पड़ रहा है, औरत का जेवर गिरवी रखना पड़ रहा है या जेवर बेचना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। आओ जरा हदीस शरीफ की रोशनी में मैं समझाता चलूं आपको। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। हदीस शरीफ की रोशनी में मुलाहिजा फरमाइए। हश्र का मैदान होगा और उस हश्र के मैदान में अव्वलीन आखिरीन सबके सब जमा होंगे। अंबिया वहां होंगे, मुरसलीन निज़ाम वहां होंगे, सहाबा की जमात मौजूद होगी, ताबईन तबे ताबईन सबके सब हाजिर होंगे। औलिया, बुजुर्गान दीन, सुलहा, कुमला, फजला, वलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, हुफ्फाज़, कुर्रा, खुतबा, शुअरा, अवामो खवास सबके सब हश्र के मैदान में इकट्ठा होंगे। अल्लाह मनसबे अदालत पर होगा, हिसाबो किताब का मामला चल रहा होगा, और हिसाबो किताब का मामला हश्र के मैदान में रब की बारगाह में चल रहा होगा। हाशिए ज़हन पर एक सवाल पैदा होता है, हश्र के मैदान में अल्लाह अपने बंदों से हिसाब लेगा। हमने कुरान में तो पढ़ा है कि अल्लाह अलीम खबीर है, अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है। क्या अल्लाह नहीं जानता कि मेरा कौन सा बंदा जहन्नमी है, उसे जहन्नम भेज दिया जाए? क्या खुदा नहीं जानता कि मेरा कौन सा बंदा जन्नती है, उसे जन्नत मिलना चाहिए? क्या अल्लाह नहीं जान रहा है कि मेरा कौन सा बंदा मुत्तकी परहेजगार है? क्या रब नहीं जान रहा है कि मेरा कौन सा बंदा आबिद सब जिंदादार है? क्या रब नहीं जान रहा है कि मेरा कौन सा बंदा काफिर है, कौन सा बंदा मुशरिक है, कौन सा बंदा यहूदी है, कौन सा बंदा नसरानी है, कौन सा बंदा मजूसी है, कौन सा बंदा वहाबी है, कौन सा बंदा देवबंदी है, कौन सा बंदा राफिजी है, कौन सा बंदा दो टांग का जानवर नाम निहाद मौलाई है? क्या रब नहीं जान रहा है कि मेरा कौन सा बंदा जन्नती है, कौन सा बंदा जहन्नमी है? और जब सब रब जान रहा है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, तो फिर ये हिसाबो किताब का मामला क्यों? ये हश्र के मैदान में
अल्लाह मनसब अदालत पर क्यों जलवागरी हो रही है, रब कदीर की ये हिसाब किताब का मामला क्यों चल रहा है, तो सुनो और दिल के कान से सुनो। हश्र के मैदान में कई एक ऐसे होंगे जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुकी होगी, मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत की बुनियाद पर वो जन्नत के अंदर जाएंगे। नबी रहमत रब की बारगाह में उस गुनहगार की शफाअत करेंगे और उस शफाअत की बुनियाद पर अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। और जब नबी शफाअत करेंगे तो नबी की शफाअत ऐसी उम्दा शफाअत होगी, ऐसी ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत होगी, ऐसी रूह फरसा शफाअत होगी, ऐसी खुशकुन शफाअत होगी कि उस शफाअत को देखकर कई एक नेकूकार ऐसे होंगे जिनके नामे आमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा, मगर वो डायरेक्ट बगैर शफाअत के जन्नत नहीं जाना चाहेंगे। एक गुनहगार को पकड़ेंगे और कहेंगे ए भाई मेरे नामे आमाल में नेकियां ही नेकियां है और तुम्हारे नामे आमाल में गुनाह भी है, ऐसा करो मेरी कुछ नेकियां ले लो और उसके एवज मुझे गुनाह दे दो, और जब मुझे गुनाह मिल जाएगा तो मैं भी नबी के शफाअत का हकदार बन जाऊंगा। जन्नत चाहिए मगर बगैर नबी की शफाअत के नहीं चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीन व ज़मन मुक्तदाए आरिफाने रोजगार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म में महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे अजीज, उसी हश्र के मैदान में अल्लाह मनसब अदालत पर जलवागर होगा। रब की बारगाह में सबसे पहले एक शहीद को पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ए मरकर हश्र के मैदान में आने वाले, मैंने तुझे दुनिया में पैदा किया, रहने के लिए बुलंदो बाला इमारत अता की, दुनिया के अंदर तुम्हारे ऐशो इशरत की चीजें मैंने तुम्हें अता की, अशियाए खुर्दो नोश अता किया, तमाम तर नेमतें अपनी तुम्हें मैंने अता की और उन नेमतों से तूने दुनिया में इस्तेफादा किया। आज कर हश्र के मैदान में आया है, जरा ये तो बता मेरी रजा के लिए आज क्या लेकर के आया है। वो शहीद पुकारेगा ए मालिको मौला तूने बुलंदो बाला महल दिया, मैं रह रहा था, ए रब्बे कदीर तेरी दी हुई नेमतों से मैं इस्तेफादा करता था। एक मर्तबा तेरे दीन की बात चली थी, ए रब्बे कदीर तेरे दीन पर आँच आई थी और जब आँच आई थी तो उसके लिए मैदान जंग का एहतमाम किया गया था। उस जंग के मैदान में दीन की हक्कानियत को उजागर करने के लिए मैं भी चला गया था। ए मालिको मौला आदाए दीन से लड़ते 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 मैंने अपने बदन के खून का एक एक कतरा बहा दिया था और जामे शहादत नोश कर लिया था। ए रब्बे कदीर आज हश्र के मैदान में तेरी रजा के लिए मैं अपनी शहादत लेकर के आया हूं। अल्लाह फरमाएगा बेशक तू झूठा है, झूठ बोल रहा है। ये किससे अल्लाह फरमाएगा हश्र के मैदान में? एक शहीद से कि तू झूठा है, झूठ बोल रहा है। ये सब तूने मेरी रजा के लिए नहीं किया था, ये सब तूने मेरे दीन की हक्कानियत को उजागर करने के लिए नहीं किया था, बल्कि जब तू मैदान जंग में जा रहा था तो तेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि मैं मैदान जंग में जाऊं और वहां जाकर के अगर मैं लड़ते लड़ते जिंदा बचकर चला आया तो लोग मुझे गाजी कहेंगे और अगर मर गया तो लोग मुझे शहीद कहेंगे। तूने लोगों को दिखाने के लिए किया था, गाजी और शहीद कहलवाने के लिए किया था, ये तूने मेरी रजा के लिए नहीं किया था। अल्लाह फरमाएगा हे फरिश्तों पकड़ो इसे, ये झूठा है, झूठ बोल रहा है, इसे पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम ले जाओ। आप जरा गौर फरमाएं। फिर रब की बारगाह में एक दौलतमंद को पेश किया जाएगा।
अल्लाह फरमाएगा ए दौलतमंद आज तू मेरी रजा के लिए क्या लाया है। अर्ज करेगा ए मालिको मौला तूने मुझे दौलत अता फरमाई, उस दौलत से मैं कारी शफीकुल्लाह चिश्ती का मदरसा बनवाया। ए मालिको मौला तूने मुझे दौलत अता की, उस दौलत से कारी निसार साहब की मस्जिद की तामीर में मैंने हिस्सा लिया था। ए मालिको मौला तूने दौलत अता फरमाई, उस दौलत से एक गरीब लड़की की शादी मैंने करवाया था। ए मालिको मौला तेरी दी हुई दौलत से एक बीमार का इलाज मैंने करवाया था। फला गरीब की मदद की थी, फला बेवा की मदद की थी, फला मखलूकुल हाल को मैं काम आया था। ए मालिको मौला तेरी रजा के लिए मैं मस्जिद बनवाता था, मदरसा बनवाता था, गरीबों की मदद करता था। तेरी रजा के लिए मैं गरीबों का इलाज करवाता था, गरीब लड़कियों की शादियां करवाता था। ए मालिको मौला जब जब तेरे दीन के नाम पर खर्च करने की बात आती मैं सबसे आगे नजर आता था। रब फरमाएगा तू झूठा है, झूठ बोल रहा है, ये सब तूने इसलिए किया था ताकि लोग तुझे दौलतमंद कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे दाता कहें, लोग तुझे करीम कहें, लोग तुझे वक्त का हातिम ताई कहें। ये सब तूने इसलिए किया था। आज मेरी रजा के लिए तेरे पास क्या है? रब फरमाएगा ए फरिश्तों ये भी झूठा है, पकड़ो इसे भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम ले जाओ। यह हश्र का मैदान है। कौन से भूल में आप जिंदगी गुजार रहे हो प्यारे, जरा गौर करो। आज हमारे उलमा आते हैं, शोरा आते हैं, बड़ी आसानी के साथ आपको 1 मिनट के अंदर जन्नत दे करके चले आते हैं। जन्नत इतना आसान नहीं है जी, जितनी आसानी के साथ आप महफिल मिलाद में बैठ करके जन्नत पा लेते हो ना, जन्नत पाना इतना आसान नहीं है। मियाँ जब आप इलेक्शन का मौका आता है ना, वोट डालने जाते हो, तो वोटिंग बूथ पर जब आप पहुंचते हो तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाता, पहले आपसे पहचान पत्र मांगा जाता है। वोट डालने आए हो, पहचान पत्र लाए हो कि नहीं लाए हो? जब आप अपना पहचान पत्र दिखाओगे तब आपको बूथ के अंदर जाने दिया जाएगा, वरना दरवाजे से भगा दिया जाएगा। दुनिया के वोटिंग बूथ का ये आलम है कि अगर पहचान पत्र ना हो तो भगा दिया जाए, बगैर पहचान पत्र के जन्नत कैसे जाओगे? हाँ, जन्नत में दाखिले के लिए भी पहचान पत्र की जरूरत है जी। अगर पहचान पत्र आपके पास नहीं है तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। वो पहचान पत्र क्या है? इंडिया का आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर, वो सर्टिफिकेट कौन सा है? वो पहचान पत्र क्या है? आपका पासपोर्ट है? जी नहीं, ये सब पहचान पत्र वहां नहीं चलेगा। ये सारे पहचान पत्र यही SIR वगैरह में चलेंगे, वहां नहीं चलेंगे ये पहचान पत्र। वहां का पहचान पत्र ये होगा कि आज़ाए वजू चमक रहे होंगे और दूर से देख करके पहचान लिया जाएगा ये नमाजी है, आ रहा है, जन्नत में जाने दो। ये इबादत गुजार है, आ रहा है, जन्नत में जाने दो जी। वहां आपका पहचान पत्र आपके आज़ाए वजू होंगे। अगर चमक रहे हैं आज़ाए वजू तो जन्नत में दाखिला आसान होगा। हाँ, वरना जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी के साथ आप जन्नतें 1 मिनट में लेके जलसों से चले जाते हो। आओ सुनो, फिर रब की बारगाह में मनसब अदालत पर एक आलिम कुरान को पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ए आलिम कुरान आज तू क्या लेकर आया है? वो भी कहेगा ए मालिको मौला मैंने इल्म कुरान हासिल किया था, और इल्म कुरान हासिल करके मैं घर की चार दीवारी में नहीं बैठ गया था, बल्कि ये मालिको मौला इल्म कुरान हासिल करके मैं इल्म कुरान मजहब इस्लाम के छोटे छोटे बच्चों को सिखाता था। ए मालिको मौला मैं इल्म कुरान के जरिया तबलीग इस्लाम करता था। ए मालिको मौला जलसों में महफिल मिलाद में जाकर मैं तकरीर करता था। ए मालिको मौला मस्जिद में इमामत करता था, मदरसे की दरसगाह में बैठकर पढ़ाता था। ए मालिको मौला खिताब करता था, तबलीग
اسلام کرتا تھا، تبلیغ دین کرتا تھا، علم قرآن عام کرتا تھا. آج کچھ لوگ فتاوی رضویہ عام کرنے کی بات کر رہے ہیں. ذرا دل کے کان سے سنو، رب فرمائے گا یہ سب تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. تبلیغ اسلام تو کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے نذرانہ دے، جلسوں میں تقریر کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے انعام و اکرام سے نوازے، نذرانہ دے، اچھا موٹا سا لفافہ پیش کرے. مسجد میں امامت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے امام صاحب کہے. مدرسے میں بیٹھ کر اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ تیری دستبوسی کریں، ہاتھ چومے، قدم چومے. یہ سارا اجر دنیا میں نے تجھے دے دیا ہے، اب میری رضا کے لیے تیرے پاس کیا بچا ہے؟ رب فرمائے گا اے فرشتوں یہ بھی جھوٹا ہے، اسے بھی پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم پہنچا دو. میرے عزیز یہ حشر کا میدان ہے، شہید نہیں بخشا جا رہا ہے. حشر کا میدان ہے، مسجد اور مدرسہ بنوانے والا نہیں بخشا جا رہا ہے. حشر کا میدان ہے، عالم قرآن نہیں بخشا جا رہا ہے، خطیب نہیں بخشا جا رہا ہے، واعظ نہیں بخشا جا رہا ہے، مبلغ نہیں بخشا جا رہا ہے، فتاوی رضویہ عام کرنے والا نہیں بخشا جا رہا ہے. یہ حشر کا میدان ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، ضرورت آواز دے رہی ہے کہ اپنے اندر نیت میں اخلاص پیدا کیجئے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ رب کی عبادت کیجئے. خلوص نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھیے، خلوص نیت کے ساتھ مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کروائیے، خلوص نیت کے ساتھ غریبوں کی مدد کیجئے، خلوص نیت کے ساتھ بیماروں کا علاج کروائیے، خلوص نیت کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریے. آج کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہماری جماعت کا نوجوان آج شراب کے ٹھیکے پر نظر آ رہا ہے، ہماری جماعت کا بچہ نوجوان آج گندی نالی کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب بیٹھ کر سٹہ بازی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جوا بازی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جھوٹ کے میدان میں دیکھو ہمارا نوجوان آگے مل رہا ہے. فریب مکاری عیاری دیکھو آج ہمارے نوجوانوں میں زیادہ پائی جا رہی ہے. اور فی زمانہ ایک بہت بڑی بیماری آج ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے. اس بڑی بیماری کا نام ملٹی میڈیا موبائل ہے. آپ جان رہے ہیں یہ ملٹی میڈیا موبائل کیا ہے؟ یہ مائک ہے، میں مائک پر بول رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے گزر جانا چاہ رہا ہوں کہ یہی مائک اگر نبی کی نعت پڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال کرنا ثواب ہے، اور اگر یہی مائک فحش گانے گندے گانے گانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس مائک کا استعمال ناجائز ہے. بلا تشبیہ و تمثیل اگر ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال دینی بیانات سننے کے لیے کیا جائے تو موبائل کا استعمال کرنا ثواب ہے. اگر یہی ملٹی میڈیا موبائل تلاوت قرآن کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال جائز ہے. اگر یہی موبائل اگر نبی کی نعت سننے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس موبائل کا استعمال کرنا باعث ثواب ہے. یہی موبائل اگر شریعت کا مسئلہ جاننے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال باعث ثواب ہے. اور اگر یہی موبائل فحش گانوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس موبائل کا استعمال حرام ہے. اگر یہی موبائل گندی تصاویر دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال حرام ہے. اگر یہی موبائل گندی ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے. آج کی زمانہ اگر ایک گھر کے اندر 3-4 کمرے بنے ہوئے ہیں، باپ الگ کمرے میں آرام کر رہا ہے، ماں الگ کمرے میں آرام کر رہی ہے، مگر جوان بیٹا اکیلے الگ کمرے میں پڑا ہوا ہے، جوان بیٹی اکیلے الگ کمرے میں پڑی ہوئی ہے. آج جوان بیٹے کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، جوان بیٹی کے ہاتھ میں یہ ملٹی میڈیا موبائل ہے، اور یہ جوان بیٹے بیٹیاں کمرے کے اندر چہار دیواری کے اندر دروازے میں کنڈی لگا کر کے گندی تصاویر دیکھیں اور گندی ویڈیوز کا استعمال کریں. اور دل کہہ رہا ہو کہ باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، اہل محلہ نہیں دیکھ رہے ہیں، گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے شوق سے دیکھو، ہمیں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. او نادان، باپ نہیں دیکھ رہا ہے نہ دیکھے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے نہ
देखे, भाई नहीं देख रहा है, ना देखे, मगर याद रख जिस रब ने तुझे दुनिया में पैदा किया है वो रब तुझे शिकमे मादल में भी देख रहा था, और वही रब आज तुझे घर की चार दीवारी के अंदर देख रहा है। आज बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो उसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल देता है। मैं कहता हूँ ये बाप की तरफ से औलाद की मोहब्बत नहीं, बल्कि ये माँ बाप अपनी औलादों पर जुल्म कर रहे हैं। अगर आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है तो मल्टीमीडिया मोबाइल हाथ में देने के बजाय आप अपने बच्चों के हाथ में कुरान दीजिए, आप अपने बच्चों के हाथ में मुसल्ला दीजिए, आप अपने बच्चों के हाथ में तस्बीह दीजिए, आप अपने बच्चों के हाथ में दीनी शरई मसाइल की किताबें दीजिए। जिन हाथों में आप मल्टीमीडिया मोबाइल दे रहे हो उन हाथों में कंजुल ईमान देने की जरूरत है, बहारे शरीयत देने की जरूरत है, अनवारे शरीयत देने की जरूरत है, कानूने शरीयत देने की जरूरत है, सच्ची नमाज देने की जरूरत है, सुन्नी बहश्ती जेवर देने की जरूरत है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, जिंदगी बदलनी पड़ेगी, माहौल चेंज करना पड़ेगा, कल्चर्स में तगय्युर तबद्दुल पैदा करना पड़ेगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में याद रखो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।